So Vikas, we are good to go. Your screen is in front of us. Okay, then let's start the session. I'm sure everyone will be safe from the COVID-19 impact in India, right? Myself is Vikas Pandey and I'm the regional sales head in Cloud Infotech. Mr. Rajiv is our MD and Mr. Avnish is our CTO in same webinar. Avnish will give you the complete brief about the Dinstar products. As you know, this webinar is for Dinstar UC products. But before to start the session, we would like to give an overview about the Cloud Infotech. What does Cloud Infotech do? So most of the people know about the Cloud Infotech product portfolio. We are totally into IP segments, and our services is IP telephony, video conferencing, and networking also. Right. Some of our focus areas are quality. Right. So we believe to maintain quality products which will be cost effective, right? And in terms of technical expertise, so we have our own technical teams, right? So जिसकी वजह से हमें अपने OEMs के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, right? For any kind of installation and support. Fourth one is on time delivery. तो मोस्टली पार्टनर्स के लिए डिलीवरी भी कंसर्न रहता है, बिकॉज सम ऑफ द कस्टमर आस्किंग फॉर द क्विक डिलीवरीज. सो उसके लिए हमने क्या किया है, हमारी मल्टीपल ब्रांचेस है इंडिया में, तो हम अपना स्टॉक अपनी ब्रांचेस में रखते हैं जिसके लिए वो क्विक डिलीवरीज कस्टमर को इमीडिएटली दी जा सके. देन आवर टेक्नोलॉजीज पार्टनर इज ग्रैंडस्ट्रीम, संगोमा, डिनस्टार, यूबिकॉम एंड हुआवे. Most of the people have heard these brands. Milestones. Basically, we have started our journey from 2011, right? और 2012 में फिर हमने डिनस्टार के साथ DGM के साथ पार्टनरशिप की. 2013 में हमने संगोमा के साथ पार्टनरशिप की. देन 14 में हमने डिनस्टार के साथ टाई अप किया और 15 में हम संगोमा और डिनस्टार के पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर बने. 16 में हमने एक और प्रोडक्ट्स एक्यूवॉक्स के साथ टाई अप किया और 17 में हमने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बना ली. 2018 में हमने एक यूबिकॉम एक प्रोडक्ट्स है उसके साथ हमने टाई अप किया और 2019 में हमने ग्रैंडस्ट्रीम के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप की. आप देखोगे 2012 टू 2019 जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था वो डिफरेंट ब्रांड में था और पूरा आईपी टेलीफोनी कम्युनिकेशन सॉल्यूशन था. बट 2020 में हमने हुआवे के साथ टाई अप किया और पोली के साथ टाई अप किया. हुआवे में मोस्ट ऑफ द पीपल्स नोज अबाउट द हुआवे, जिसमें हमारे स्विचेस, राउटर, एक्सेस पॉइंट, दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं. पॉलीकॉम में हमने प्लांट्रॉनिक्स. पॉलीकॉम में बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस एंड प्लांट्रॉनिक्स ऑल्सो, जिसमें हमारे हेडसेट्स आते हैं, यूएसबी, आरजे, कॉल सेंटर्स एंड सो, राइट. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं इन दीज ब्रांड्स, जिसमें मैंने अभी आपसे बात करी, जिसमें बेसिकली हमारे जो है एफएक्सेस गेटवे, आईपी फोन्स, IPPBX, GSM गेटवेज. सो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हम हमारा जो भी आईपी टेलीफोनी इंडस्ट्रीज हैं उसके सारे इंडस्ट्रीज को हम टारगेट करते हैं, लाइक फॉर एंटरप्राइज, लाइक फॉर SMB, कॉल सेंटर सॉल्यूशंस. तो इस तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, राइट. So now we will discuss about the Dinstar and Avnish will give you the complete brief about the Dinstar. Avnish, over to you. Thank you so much, Vikas. Just hold on. Let me disconnect my screen also so you can continue. Okay, done. You can start now. Okay, fine. So good afternoon, everyone. So as Vikas already introduced me as the technical guy in Cloud Infotech, and with us
Dinstar technical person Mr. Hua and Dinstar sales director Mr. Roy is also in this webinar. You can see them as a panelist. So we are going to start about Dinstar products, right? You all are aware that Dinstar is one of the leading VoIP distributed company in the whole world, and they are providing you a different type of products like the GSM gateway, FXS gateway, SBC, IPPBX, all of that. So before going for the Dinstar products, I'm just going to introduce that what Dinstar is, a little bit description about what Dinstar is. So as you can see here, that we are providing all type of products which are totally dedicated to the unified communication. Now, if we are talking about why Dinstar, as you can see, that Dinstar already has an experience of 15 years. They are providing you VoIP gateways and all type of products which are totally related to the IP telephony. We all are familiar with the Dinstar FXS FXO gateway, Dinstar GSM gateway, and some sort of PBX available in the market. Right. Dinstar is one of the company in 2012. Dinstar has released its first 16 or 32 port GSM VoIP gateway in the world. So if we are talking about GSM gateway, GSM VoIP gateway, so GSM to IP conversion, so that you can easily use the GSM gateway in your IP network without the need of any additional hardware like PRI card and all that. So Dinstar was the first company who launched GSM gateway in 2012. Dinstar has more than 200 employees and 50% of whom are engaged in research and development. So at any point of time, if you are facing any sort of challenge by using using Dinstar gateways, Dinstar product in your telephony network, then we are always ready to provide you some sort of firmware which are going to resolve your problem. And that is only possible because in the backend, 50% of Dinstar employees are continuously working on the R&D part. आप आज एक प्रॉब्लम लेके हमें बताते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है आपके नेटवर्क में, आपके डिप्लॉयमेंट में, आपके एप्लीकेशन के साथ इस तरह से ये फिजिबल नहीं हो रहा, तो हम उसे आपसे ये नहीं कहते कि Dinstar के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है इससे. We always come with a solution. We provide you a new firmware, new version release, or some type of feature add-on in those gateways. So जैसे अभी हमारे यहाँ जियो लॉन्च हुआ, जियो लॉन्च होते ही वोल्टी गेटवे सबसे पहले Dinstar का आया मार्केट में, बिकॉज एक फ्यूचर फोरकास्ट था कि ये टेक्नोलॉजी आ रही है एंड वी हैव टू प्रोवाइड सच प्रोडक्ट्स जो इमीडिएटली आपको मार्केट में वो नई टेक्नोलॉजी यूज करने में हेल्प करे. धीरे धीरे वोल्टी गेटवे ऑलमोस्ट कमिंग इन एवरी ब्रांड, but the Dinstar was the first who launched that. Dinstar VoIP gateways are widely used in big telecom companies, call center, enterprise network. Like Jio के साथ भी Dinstar के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं जियो में, और Dinstar के PRI गेट में बल्क में यूज हो रहे हैं. बाकी अगर हम ये सिर्फ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, बाकी अगर हम चाइना की बात करें या ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, तो Dinstar is still one of the leading VoIP distributor products in the world. This is a little bit explanation about the reachability of Dinstar. You can see Dinstar has already a customer base of more than 3,000. They are already covering more than 90 countries across world. कस्टमर आप देख सकते हो तो हमारे नोन ब्रांड्स हैं लाइक ऑरेंज, MTS, जियो, वीवो, डिजिसेल, एयरसेल, वोडाफोन.
ये हमारे नोन ब्रांड्स हैं जिनमें डिनस्टार के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, और जो बाकी आपको दिख रहे हैं, these are also one of the leading telecom operator across the world. If you are talking about the compatibilities, since the Dinstar products are all totally IP based, so it will provide you the whole connectivity of telephony through IP. So this is compatible with these known brands: Cisco, Huawei, Ericsson, 3CX, FreeSwitch, Avaya, Asterisk, Elastix, Panasonic, Jetty, Apizee, Nokia Siemens Network. ये वेल नोन नेम्स हैं इन द टेलीफोनी मार्केट. तो यू कैन सी ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड, एवरी प्रोडक्ट which is on the PBX platform or the calling platform is compatible with Dinstar products. This was a brief description about Dinstar. So now onwards we will come to the Dinstar product line. तो Dinstar product line के बारे में अगर हम बात करें तो we have these segments of the product in which there are different models and different type of varieties in terms of the technical or technology, like access gateway, FXS, FXO gateway, media gateway में आपके PRI gateway वगैरह आते हैं, जो SS7 transcoding gateways, SBC, this is for totally for the security of VoIP, GSM gateway. Almost everyone who are available here are familiar to the term GSM gateway, IPPBX and universal gateway. ये सेगमेंट्स हैं डिनस्टार के, जिसके बेस पे हम बाकी सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं और कैपेबल कितने हैं. जैसे एक्सेस गेटवे की हम बात करें तो एक्सेस गेटवे जब भी हम बात करते हैं दैट इज एफएक्सएस एंड एफएक्सओ. ठीक है, आइदर इट विल बी एफएक्सएस गेटवे और इट विल बी एफएक्सओ गेटवे. These are the different models, D1000, 2000, 2500, 3000. ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सेस गेटवे से रिलेटेड हैं. जैसे अगर आप देखो एफएक्सएस, तो एफएक्सएस में हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्ट 1 एंड द मैक्सिमम इज 112. और ऐसा नहीं है कि 1 और 112 के बीच में जो वेरिएंट्स है देयर आर ओनली 1 और 2 मॉडल्स. आप देख सकते हो 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 48, 62, 112. सो 1 से 112 के बीच में और भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने सॉल्यूशन को डिजाइन करने के लिए. यू कैन गो विथ 32 पोर्ट, यू कैन गो विथ 48 पोर्ट. तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यू कैन चूज फ्रॉम द रेंज ऑफ द एफएक्सएस गेटवेज. ठीक है, अगर हम वही एफएक्सओ गेटवे की बात करें तो एफएक्सओ गेटवे में आप देखो मैक्सिमम 2, 4, 8, 16 टिल 16, 2, 4, 8, 16 एंड 16 के बाद फिर सीधे 112 पोर्ट एफएक्सओ. और अगर एफएक्सएस एफएक्सओ इन दोनों को हम अगर मर्ज करके बात करें तो उसमें सिंपल सा है कि 4-8, 8S8O, 4S4O. It means if you want a combination of FX and FXO device, एक सिंगल डिवाइस में आपको FXS और FXO दोनों को ही कंबाइन करना है, then you can go with 4S4O, मतलब 4FXS 4FXO मिल जाएगा आपको आइदर, और 8S8O, 8FXS 8FXO. वैसे ही अगर हम इसकी बात करें DAG 2500, ये 4872 पोर्ट एफएक्सएस है. SNMP TR069, ये सारे प्रोटोकॉल्स ये सपोर्ट करते हैं, राइट. और ये सारे जो इलास्टिक्स, ब्रॉडसॉफ्ट इनके सर्टिफाइड है. अब ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, दीज आर कमिंग सून. इन प्रोडक्ट्स की बात करें तो अभी
कुछ एक मॉडल्स हमारे पास ऐसे हैं, दोज आर अवेलेबल विद इन गीगाबिट पोर्ट्स, but not all. So these features are coming soon in the Dinstar access gateways, starting from 8 and goes up to 112. We are coming with gigabit ports in LAN and IPv6. IPv6 आज की डेट में ऑलमोस्ट IPv4 ही चल रहा है. अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर गोइंग विथ IPv4 ओनली. लेकिन फॉर फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज है हमारी कि हम जो नेटवर्किंग का हमारा चेंज होगा, दैट इज कमिंग विथ IPv6. टू मेक आवर प्रोडक्ट्स फ्यूचर सिक्योर वी आर कमिंग विथ IPv6, ताकि आपको कहीं भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है इन योर प्रोजेक्ट्स, इन योर टेंडर्स, इन योर normal deployments at customer site, if you want IPv6, then we are coming with IPv6 soon. और जब हम 112 की बात करते हैं, then we are coming with 1+1 MCU backup. Right now 112 port FXS is coming with only one CPU, one MCU, but soon we are coming with backup, like if one main board will be failed, then other will provide you the backup. So एक redundancy आपको provide करने के लिए we are coming with 112 port FXS with 1+1 MCU backup. अगर हम सिंपल FXS गेटवे की बात करें तो हम एक फेमिलियर है कि व्हाट इज FXS गेटवे. तो हमें इजीली पता है कि जब भी हम IP टेलीफोनी की बात करते हैं और अगर मेरा यूजर एंड जो एंड यूजर है वो अगर एनालॉग फोन्स यूज कर रहा है एंड द होल नेटवर्क इज ऑन IP, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो IP एनालॉग से कम्युनिकेट नहीं कर सकता. सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू FXS. So your IP communication can be converted to the analog signal. Your analog phones can be directly connected to the IP PBX. उसके लिए हमें पता है कि FXS गेटवे यूज होता है, लेकिन FXS गेटवे के और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. लाइक अगर आप देखो की फीचर्स, FXS और FXO कनेक्ट टू ट्रेडिशनल PBX. ठीक है, अगर आप इस पहली इमेज में देखो, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट one branch is using FXS and two people are using the phone lines behind that. Through internet, VPN or LAN connectivity, if we connect another branch again on FXS, so we can communicate these two FXS without the use of IP PBX. But ये एक फीचर है FXS गेटवे का कि आप FXS to FXS डायरेक्टली ऑन IP कम्युनिकेट कर सकते हो. बट फॉर स्मॉल डिप्लॉयमेंट, लाइक कोई ऐसा प्लांट्स वगैरह हैं जो आपके कुछ डिस्टेंस पे है, लाइक ऑन 50 किलोमीटर डिस्टेंस, दे आर रनिंग ऑन फाइबर, दे आर कनेक्टेड थ्रू फाइबर. और उस केस में अगर आपको यूज करना है FXS गेटवे फॉर 1 और 2 मैक्सिमम अप टू 4, तो आप नहीं चाहते हो कोई PBX डिप्लॉय करना, तो यू कैन गो विद कि 4 पोर्ट का FXS एक जगह लिया, दूसरी जगह लिया, दोनों को ऑन फाइबर हमने कनेक्ट कर दिया और उसके थ्रू हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं. वहां से बंदा और यहाँ दोनों पर्सन आपस में लाइक एन इंटरकॉम, दे कैन कनेक्ट विथ ईच अदर. सेम एज इफ वी रिप्लेस वन FXS फ्रॉम FXO, देन वी कैन यूज द डायल टोन ऑफ अनदर लोकेशन. इट मीन्स अगर एक लोकेशन पे आपकी BSNL की लाइन है, अनदर लोकेशन वांट टू यूज दैट BSNL लाइन, then you can easily deploy one FXO and one FXS, FXO at location 1, FXS and location 2, and they can use the location 2 guy can use the BSNL line of location 1. आप इसे PBX, अगर ये more than 4 है, then you have to go with PBX, but less than 4 you can go with normal FXS. Easy to deploy and save cost. Second point में भी आप देखो तो अगर कोई ट्रेडिशनल PBX है, वहां पे आपको लगता है कि आपको 2, 4, 8 लाइनों के लिए ऐसा चाहिए कम्युनिकेशन कराने के लिए, तो आप FXS FXO गेटवे लगा के उसके ऊपर IP PBX डिप्लॉय करके यू कैन कम विद द सॉल्यूशन. आई विल नॉट गो इन डीप रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन.
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई क्वेरी हो, some sort regarding some sort of solution, you can easily contact with our salesperson. They will be happy to answer you. Our failure bypass, जो अभी हम बात कर रहे थे ऊपर FXS FXO कॉम्बाइंड डिवाइसेस की, तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये है आपका कि आप PBX के साथ तो उसे यूज कर रहे हो, सेम टाइप के आपके 4 FXS लाइन भी निकल रहे हो और 4 आप ट्रंक लाइन उसमें टर्मिनेट कर रहे हो. बट इन केस ऑफ फेलियर, पावर फेलियर हो गया या फिर आपका PBX फेल हो गया, तो उस केस में आपके वो 4 FXS जो एनालॉग फोन पे बैठे हैं, दे कैन यूज योर ट्रंक लाइन और योर लैंडलाइन डायरेक्टली थ्रू दैट PBX, थ्रू दैट FXO. वो बाईपास है एक तरह से, राइट? You can see in the second line, in case of network disconnection or power outage, the gateway can direct outgoing calls through PSTN line. ठीक है? Now, we have already explained the access gateway here. Now, we are coming to the next part, that is media gateway. In between, अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, you can ask in the question answer session or you can ask in the chat section. Our panelists are there to help you with that. So now we will talk about the media gateway. We all are totally familiar with the media gateway, that is PRI gateway. And अगर हम देखें इसमें तो starting from one port, and we are providing you a media gateway of 63 port, 63 even T1. So variants are here 1, 2, 4, 8 port, 20 port, and the maximum up to 63 port. These are the carrier grade media gateways, MTE 2000, MTE 3000. अगर आप इसे देखो तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 पोर्ट, 4, 8, 12, 16, 20, आप इमेज में देख सकते हो 4 पोर्ट के स्लॉट्स हैं, तो दे आर कमिंग इन मॉड्यूलर सेक्शन. इसका प्लस पॉइंट आपके पास ये है इस मॉड्यूलर सेक्शन का, इफ यू वांट अ PRI गेटवे ऑफ 8 पोर्ट और आपको लगता है फ्यूचर में आप 12, आपको 16 पोर्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो यू कैन गो विथ नॉर्मल 8 पोर्ट गेट. यू कैन गो विथ MTE 2000 विथ 8 पोर्ट्स. आपको 4 पोर्ट के 2 स्लॉट्स लग जाएंगे. In future, if you want more than 8 ports, like 12 or 16, you can easily buy a separate 4-port card for this particular gateway, and you can buy license from us, and your gateway is totally upgraded to 12 port, 16 port, 20, and up to 20 port without any additional hardware cost. Any additional hardware cost, इसमें सिर्फ आपको PRI कार्ड की कॉस्ट आएगी जो 4 पोर्ट के स्लॉट्स में आएंगे. आपको कंप्लीट बॉक्स नहीं चेंज करना पड़े. दैट आई मीन बाय विदाउट द नीड ऑफ हार्डवेयर, एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट. आपको बॉक्स कंप्लीट नहीं चेंज करना. ऐसा नहीं कि आज आपके पास 4 पोर्ट का गेटवे, कल आपको 8 चाहिए तो आप एक और 4 पोर्ट का गेटवे लो. यू कैन गो विथ ओनली 4 पोर्ट कार्ड इन दैट. सेम एज फॉर 63 even. You can see that this is again the modular, it is based on the modular hardware structure. 16, 32, 48, 63, 4 अवेलेबल वेरिएंट्स आते हैं इसमें. ठीक है. फाइबर ऑप्टिकल इंटरफेस, रिडंडेंसी अपलिंक GE, हॉट पैच, क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट. इसमें भी अगर आप देखो तो ये सारे के सारे जो भी वाइड बैंड कोडेक्स हैं, जो those codecs which are totally feasible with the IP telephony, IP PBX platform are available with that. Mainly हम G711 पे काम करते हैं या G729 पे जाते हैं. It's little bit technical, but you should be aware that our products are totally compatible with all of the audio standards available in the market. फिर उसके लोअर वेरिएंट्स, अभी हमने MTE 2000, 3000 की बात की जो 4 पोर्ट से स्टार्ट होकर 63 पोर्ट तक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द
basic models. MTG 200, MTG 600, MTG 1000p. MTG 200, 600 में 1 और 2 even. So maximum 60 concurrent call. ठीक है, और ये सब कुछ आपका सपोर्ट करता है. लाइक द प्रीवियस वन, इट इज ऑल्सो कमिंग विद the audio codecs of G711, G729. So maximum it will provide you the 60 concurrent call, and the difference between 200, 600 and 1000 is 1000 is totally rack mounted and 200, 600 are a normal device which cannot be, it's a tabletop, it cannot be mounted on a rack. Okay, now we will talk about the ट्रांसकोडिंग गेटवे. तो ट्रांसकोडिंग गेटवे की जब भी हम बात करते हैं तो ट्रांसकोडिंग गेटवे हमारा नॉर्मल सा, इसका मतलब यही हो गया कि ट्रांसकोडिंग वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? लाइक इफ योर PBX is running over a normal type of coding, a normal type of audio code, like it is running on G711, और जो आपका प्रोवाइडर है वो रन कर रहा है G729. एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा बहुत टेक्निकल है, बट G711 एंड G729. अब आपका PBX जो कॉल भेज रहा है दैट इज रनिंग ऑन G711, अदर एंड इज रिसीविंग एट G729. बोथ आर नॉट मैचिंग at the same frequency, at the same level, at the same compressing technique. So you will need some type of devices which will convert this signal to the compatible signal at other end. तो इसलिए ट्रांसकोडिंग गेटवेज यूज होते हैं कि आपके एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैच कराने के लिए, कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हो, दूसरे वाले को उसी फ्रीक्वेंसी पे सुनाई देना है, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट. वो उसी फ्रीक्वेंसी पे रिसीव करेगा, तभी आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो. सो वी नीड ट्रांसकोडिंग गेटवे इन दैट केस. MTG 3000 is providing you the ट्रांसकोडिंग फैसिलिटी. अगर आपको इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद अस. इट्स नॉट फॉर द नॉर्मल सिनेरियो, बट अगर हाँ कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो यू कैन गो विद दीज आर द बेसिक ट्रांसकोडिंग सेशंस, कि किस फॉर्मेट से किस फॉर्मेट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने सेशंस तक हमारी डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं. आफ्टर द मीडिया गेटवे we will talk about session border controller. Before session border controller थोड़ा सा हम टाइम लेंगे at the end, but before that we will quickly finish the product line with which we are already familiar, the GSM gateway. SBC पे हम after GSM gateway and PBX we will come back to SBC. GSM gateway 148.16.32. GSM gateway, you all are familiar with that. सबको पता है कि हमारे पास एक पोर्ट, दो पोर्ट, चार पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 32 पोर्ट तक के GSM gateway अवेलेबल है. And they all are running over all the networks available in the market. 2G, 3G, 4G, VoLTE, सारे सपोर्ट करते हैं. आपको जियो रन करना है, एयरटेल रन करना है, आइडिया, वोडाफोन, दिस इज कंपैटिबल विथ ऑल द प्रोवाइडर्स, ऑल द टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट. इट इज रनिंग ओवर ऑल द GSM बैंड that is already mentioned here, 850, 900, 1800, 1900. Codec already we have described that G711, G723, G729. इसके साथ साथ आप इन गेटवेज को कॉलिंग के साथ साथ SMS के लिए भी यूज कर सकते हो. We have open API for SMS or USSD. You can use it for receiving SMS or sending SMS either in bulk or service based. Like आपका कोई सर्विस ओरिएंटेड आपका प्रोसेस है, like you are receiving call, आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कि yes we have received this call
and we have registered your complaint with this number. You can easily integrate this GSM gateway with your process so that after receiving the call, a message should be sent from that particular SIM to the customer कि आपकी कंप्लेंट हमारे पास रजिस्टर हो गई है और ये आपका नंबर है, ये आपका कंप्लेंट नंबर है. तो इस तरह से आप इसे सर्विस ओरिएंटेड में भी यूज कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है. इट मींस इट इज टोटली ओपन फॉर ऑल द अवेलेबल requirements related to the SMS, bulk SMS, right? Remote SIM card management, that is totally based on SIM cloud. इसमें क्या है कि नॉर्मली जहां से हमारे गेटवेज हैं, आपने बल्क में कोई डिप्लॉयमेंट कर रखी है, लाइक आप यू हैव 10, 15, 20 गेटवेज, और आपका आईटी पर्सन उसे ऑन फ्रॉम अ सिंगल प्लेटफॉर्म मैनेज करना चाहता है, तो आप कर सकते हो. आप डिंस्टार के क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन पे जाके अपने सारे गेटवेज को वहां रजिस्टर कर सकते हो, सो दैट यू कैन कम विद अ सिंगल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन मैनेज ऑल ऑफ योर गेटवेज. आप 20 के 20 गेटवे को एक सिंगल प्लेटफॉर्म से रजिस्टर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, नॉट रजिस्टर, सॉरी. और उसी को अगर हम अभी हमने बात की 32 पोर्ट गेटवे की, अब हम बात करते हैं मल्टी सिम वॉइप गेटवे की. इसमें आपके पास 16 और 32, 16 पोर्ट 64 सिम स्लॉट, 32 पोर्ट 128 सिम स्लॉट, राइट. 16 पोर्ट 64 सिम स्लॉट, इसका मतलब, और ये पोर्ट और सिम स्लॉट्स, पोर्ट का मतलब आप ये मान लो कि इतने पोर्ट्स अवेलेबल है, इट मींस दीज आर द कॉन्करेंट कॉल अवेलेबल इन द प्रोडक्ट. और सिम स्लॉट, इतने सिम आप लगा सकते हो. इट मींस अगर 32 128 आप लेते हो तो आप 128 सिम लगा सकते हो और उसके साथ आप 32 कॉन्करेंट कॉल ले सकते हो. इट मींस एट ए टाइम आपकी 32 सिम्स एक्टिव होंगी हर पर्टिकुलर पोर्ट की. एक पोर्ट पे 4 स्लॉट और हर पोर्ट से एक सिम एक्टिव होगी. सम ऑफ द अदर products available in the market in GSM gateway, they are also providing some type of solution but with the name of SIM bank. It's the same 32 port 128, but it's not SIM bank, it is normal GSM gateway with multi SIM capability. और अगेन इसके आपको इससे बेनिफिट मिलता है, लाइक अगर आप एसएमएस कैंपेन या फिर कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हो जिसमें आपको अपना नंबर्स कंटिन्यूअसली रोटेट करना है, you can schedule that on the GSM gateway, like after a particular amount of calls, like say 100 minutes or 100 calls from one SIM, it will rotate to another SIM. It will change its caller ID, right? BCCH आपने ऊपर भी देखा होगा, नीचे भी देखा होगा. BCCH is a function which you can manage at the gateway end. ये टेक्निकल पॉइंट है BCCH का, बट BCCH मैं इसलिए यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई भी गेटवे डिप्लॉय करते हैं तो ऑलवेज इट्स नॉट नेसेसरी दैट गेटवे इज हैविंग सम प्रॉब्लम सो दैट योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर नेटवर्क इज नॉट कमिंग. ये हमारे नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है, हमारे लोकेशन पे भी डिपेंड करता है. लाइक बहुत सारे लोग इस टाइम अपने फोन के, जो आप फोन यूज कर रहे हो उसको आप किसी पर्टिकुलर, अपने ही घर में आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हो, वहां सिग्नल कम आता है, किसी पर्टिकुलर दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो वहां सिग्नल स्ट्रांग आता है. तो इट टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिप्लॉयमेंट एंड द लोकेशन ऑफ द गेटवे. और BCCH हमको नेटवर्क स्ट्रेंथ बताता है कि हम किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जब डिप्लॉय करेंगे तो हमारा नेटवर्क स्ट्रेंथ बेटर होगा. लाइक इफ वी आर डिप्लॉइंग आवर गेटवेज इन ऑफिस, राइट, और वहां पे अगर हमें चेक करना है कि लाइक हमने एक ईस्ट कॉर्नर पे अगर हम लेके जाते हैं गेटवे, तो वहां पे अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस में कुछ ब्रेकिंग आ रही है या आपको ये दिख रहा है कि नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है, यू कैन चेक द BCCH स्ट्रेंथ. अगर वहां पे वो एक डिफाइंड वैल्यू होती है, अगर उसके रेंज में है, इट मींस योर नेटवर्क स्ट्रेंथ इज गुड. इफ it is beyond that range, your network strength is not good. It is not the problem of the gateway, it is the problem of the network strength. These are some of the upcoming products in GSM gateway. अभी हम जो GSM gateway की बात कर रहे थे, इसमें वोल्टी हमारे सब पे है,
सीपीयू को थोड़ा और पावरफुल कर दिया गया हमें। वाइड बैंड कोडेक्स ऑलरेडी इन यूज थे, कुछ और कोडेक्स यूज कर लिए गए हैं लाइक ओपस वगैरह, जो आज की डेट में वेल इट्स अपकमिंग टेक्नोलॉजी इन द ऑडियो कोडेक्स। तो वो सारी चीजें यूज हो रही हैं। वीपीएन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंड इट इज कमिंग विद गिगबिट पोर्ट्स। इट विल रन ओवर 1000 Mbps नेटवर्क पोर्ट। We will talk about 32 GSM gateway. Then it is again coming with a gigabit port. The LCD display, it will provide you IP and all other, since it is not necessary to have an LCD display in the device, right? But why we are providing this, like you have flexibility to obtain the IP on the LCD display. वैसे IP फाइंड आउट करने के कई सारे बहुत इजी वे हैं, बट टू मेक इट मोर इजियर वी आर प्रोवाइडिंग यू LCD डिस्प्ले एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केट की डिमांड तो होती है, इट्स नॉट यूजफुल टू द टेक्नोलॉजी, बट it's the demand of the market, so we are providing you LCD display in that. port GSM gateway, again same scenario, 32 पोर्ट तक हमारे पास अवेलेबल था, अब हम 64 पोर्ट के साथ भी आ रहे हैं, which is an upcoming product. It has not been officially launched. It's an upcoming product. So in 64 port GSM gateway, this gateway will also support VoLTE. आपका जियो बहुत प्यार से इसमें रन करेगा। मतलब जैसा आप अभी 32 पोर्ट यूज कर रहे हो, वैसे ही हम 64 पोर्ट के साथ आ रहे हैं, बट विद अ पावरफुल CPU और गीगाबिट इथरनेट पोर्ट, ठीक है। और VPN के ऑल सॉर्ट ऑफ PPTP, L2TP, VPN, इन सबको सपोर्ट करेगा ये। इसके लिए रिलेटेड कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपकी माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन गो विथ द रेस्पेक्टिव सेल्स पर्सन, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे और कहाँ यूज किया जा सकता है। वैसे हम सब अवेयर हैं कि GSM गेटवेज कैसे यूज होंगे। दिस इज a small example that GSM gateway solution for call center, ठीक है। अगर आप नेटवर्क देखो, एक सिंपल है, कॉल सेंटर है, स्विच के साथ कनेक्टिविटी है, और ये हमारा GSM गेटवे है विच इज टेकिंग अ नेटवर्क फ्रॉम द GSM टावर, और ये हमारे एजेंट्स बैठे हुए हैं, राइट। इस एजेंट्स में आपको ये भी दिख रहा होगा, सम ऑफ द AI रोबोट एजेंट, सम ऑफ द मैनुअल एजेंट। सो आज के टाइम में AI भी एक टेक्नोलॉजी आई है कि बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रही है अभी कॉल सेंटर टर्म्स में, लेकिन जैसे आप चैटबॉट और ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, सेम एज द AI रोबोट, वो भी आपको कोई प्री डिफाइंड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर देता है, बट इट्स फॉर द होल वर्ल्ड। अभी हमारे पास अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो आवर गेटवे इज कैपेबल एनफ टू सपोर्ट दैट। SMS to email, email to SMS, management limitation of call duration, balance alarm, flexible call control strategies, saving call cost, improve answer rates, improve customer experience. In short, अगर कोई SMS आपके मोबाइल, आपके सिम पे आता है which is inserted in your GSM gateway, आप उसको अपने ईमेल पे रिसीव कर सकते हो, और आप अपने ईमेल से ही कोई SMS किसी भी थर्ड पर्सन को सेंड कर सकते हो विद द यूज ऑफ GSM गेटवे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, आप इसमें कॉल लिमिट्स लगा सकते हो, लाइक आफ्टर 100 कॉल इस सिम से कोई कॉल नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं GSM गेटवे में। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, यू कम विथ योर रिक्वायरमेंट, वी विल कम विथ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, IPPBX। तो अभी हमने FXS FXO गेटवे, PRI गेटवे एंड
GSM गेटवे, ये 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन IPPBX. Then at the end we will come to the SBC part. Okay, so IPPBX में already we are in the market with UC100, the mini compact IPPBX, which is capable enough to provide you unified communication. ये अपने टाइप का पहला प्रोडक्ट था मार्केट में लॉन्च होने वाला, जो आपको GSM, FXS, FXO, वाईफाई सब कुछ ऑन अ सिंगल बॉक्स प्रोवाइड कर रहा था. राइट नाउ देयर आर several type of products available in the market with the same features, but ये पहला प्रोडक्ट था. और पहला था इसलिए आज की डेट में अगर आप देखो इसे तो ये 2G पे भी रन करता है. जो अगर हम सिम की बात करें कि सिम ये क्या 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 काम करता है, तो इट विल रन ऑन 2G, इट विल रन ऑन 3G, इट विल रन ऑन 4G सिम, and it will run on VoLTE SIM to provide you a calling mechanism as well as data through the same SIM. Right? So it means आप जो ये VoLTE डिवाइस है, इसके साथ आप अगर आप इसमें जियो का सिम लगाते हो तो आप इसके थ्रू अपना इंटरनेट भी यूज कर सकते हो और इसके थ्रू कॉलिंग भी कर सकते हो एट द सेम टाइम. सिंगल लेवल का IVR अवेलेबल है. 32 एक्सटेंशंस ये सपोर्ट करता है कि कोई स्मॉल ऑफिस है, आपको 32 एक्सटेंशंस, या फिर जो रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं ऐसे जगह अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, दे कैन प्रोवाइड दैट ऑन अ सिंगल फ्लैट टू फ्लैट बेसिस. कि ये आपको सिप भी प्रोवाइड करता है सो दैट यू कैन इंटीग्रेट ऑल ऑफ योर IoT डिवाइसेस, सिप डिवाइसेस विद दैट. और ये आपको वाईफाई राउटर की तरह भी वर्क करता है. तो इस पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हम इसे इन शॉर्ट अगर डिफाइन करें तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं आपके पास. कि पहली बात, UC100 के जो वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स में आपको 1FXS 1FXO भी मिलता है. 2FXS के साथ भी आपको UC100 मिल सकता है. आपको सिम FXS FXO के साथ भी मिलता है. लैन पोर्ट्स और वैन पोर्ट सपोर्ट करता है. 3 लैन पोर्ट 1 वैन पोर्ट, राइट, विद वाईफाई राउटर. IVR आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो. तो डिफरेंट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है. तो UC100 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो, कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई रिक्वायरमेंट आ रही हो ऐसी, यू कैन डिस्कस विद आवर सेल्स टीम. वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, यू कैन हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट. और अब इसी जो स्मॉलर हमारा PBX था UC100, UC100 की जो डिमांड थी मार्केट में, जो रिक्वायरमेंट्स रेज हो रही थी, उसमें कुछ एड ऑन फीचर्स भी टाइम के साथ हमारे सामने आए. सो वी कम विद एन एडवांस ऑफ UC100, दैट इज UC120. Earlier UC100 was only supporting 32 extensions, right? But UC120 will support up to 60 SIP extension. 15 concurrent call आपको ये देगा, same as 1 LTE 1 GS 1 LTE 1 FXS 1 FXS सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा. इसमें एक USB पोर्ट है जिसके थ्रू यू कैन हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ योर कॉल, राइट. तो इस तरह से आपको सारे IPPBX वाले फीचर ही मिलेंगे. जो UC100 में आपके फीचर्स थे वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे. इसके साथ साथ बस इसकी एडवांस फंक्शनलिटी, इट विल प्रोवाइड योर कॉल रिकॉर्डिंग, इट विल प्रोवाइड यू अ बेटर, it will provide advancement in the users as well as concurrent call, like 60 SIP extension and 15 concurrent calls. तो अभी तक अगर हम PBX की बात करें तो हमने बात किया UC100 UC120. UC100 में हमारे पास वेरिएंट्स थे कि some are coming with only FXS extension, some are coming with VoLTE and FXS FXO, all of them in a single device. Then comes UC120 VoLTE FXS FXO and with USB port for call recording. Then comes the fourth product of the IPPBX from Dinstar, that is UC200. It is again coming with 2FXO and 2FXO.
right? So two FXs and two FXO you can use with this device. It will provide you 500 SIP extension, 30 concurrent calls. It will support VPN. It will again support the call recording. और कॉल रिकॉर्डिंग आप इसे USB या SD कार्ड जैसे चाहो आप वैसे यूज कर सकते हो. मल्टी लेवल IVR and all of the features which are available in the IP-PBX that is available in UC200. अब अगर हम इसकी बात करें प्रोडक्ट से रिलेटेड मोबिलिटी, क्या क्या हम इन सारे ये जो कॉम्पैक्ट IP-PBX हमने अभी तक आपको डिस्क्राइब किया है उसके थ्रू हम क्या क्या फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं. लाइक मोबिलिटी, राइट. UC100 अपने एक ब्रांच पे हमने लगा दिया एंड वी कम अप विथ internet deployment on that. We can use our SIP, you can say extension or soft phone in your phone, and you can connect through UC100 for an intercom calling. तो एक्सटेंशन ऑफिस में जैसे डेस्क पे आपके फोन लगा हुआ है और आप मूव करते हुए अपने सेकंड फ्लोर पे चले गए, थर्ड फ्लोर पे चले गए, समवन इज कॉलिंग यू, तो आप अगर अवेलेबल नहीं हो अपनी सीट पे, यू कैन इजीली रिसीव दैट ऑन योर मोबाइल. और अगर आप ऑफिस से बाहर भी जाते हो और आप उस रेगुलेशन को फुलफिल करते हो जो गवर्नमेंट्स अलाउ करती हैं, तो यू कैन इजीली यूज दैट एज एन इंटरकॉम एट डिफरेंट लोकेशंस. ब्रांच ऑफिस सॉल्यूशन. अब ब्रांच ऑफिस सॉल्यूशन में क्या है, एक ब्रांच पे आपने UC100 लगाया, दूसरे ब्रांच पे आपने UC100 लगाया, यू कैन कनेक्ट बोथ द ब्रांच ओवर VPN एंड यू कैन कम्युनिकेट between those branches and an intercom device. So ऐसे ही किसी भी टाइप की डिप्लॉयमेंट के लिए फॉर स्मॉल लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट अप टू लार्ज लेवल, like you can start with 8 SIP extension and goes up to 500 SIP extension with the Dinstar UC products, right? This is a small roadmap. I will not take much more time. I will just go through that quickly. ये हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स है. देखो, एक UC2500, इसमें आपको सर्वर लेवल की फैसिलिटी मिलेगी. इट मींस इसका हार्डवेयर एक लार्ज स्केल ऑफ सर्वर, जो लार्ज स्केल ऑफ कॉलिंग को जो सपोर्ट करने के लिए सर्वर्स होते हैं, उनको उनके सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनलिटी के साथ है. लाइक x86 सपोर्ट कर रहा है, i3 i5, जैसा आपको चाहिए वैसा ऑप्शनल ये अवेलेबल है. It will provide you different type of user board. आपको जैसा चाहिए you can choose as per your requirement. क्या आप even ports चाहते हैं, FXS चाहते हैं, FXO चाहते हैं, you can use all of them on a single box. Redundant CPU user boards. It means आपको redundant functionality मिलती है. अगर आप एक फेल हो जाता है, दूसरा user board आपको easily उसे यूज करना दे सकता है. और इसके साथ साथ ये Dinstar के अपने PBX के साथ आएगा, बट इसके साथ आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आप इसमें अपना सॉफ्टवेयर भी डिप्लॉय कर सकते हो. बट इट्स ऑन द रोड मैप, इट हैज नॉट बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड. तो जैसे ही लॉन्च होगा, वी विल कम विद द इंफॉर्मेशन टू अस. दिस इज UC1500, अगेन द सेम थिंग, द UC, एंड दिस इज UC350. ऊपर जो आपने देखा, दोज आर मॉड्यूलर. आप E1, FXS, FXO सब कुछ यूज कर सकते हो. और उसके बस कैपेबिलिटी के ऊपर था कि एक आपका 3.5U का था, एक 1.5U का है. उसमें आप डिफरेंट फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो, डिफरेंट इंटरफेस यूज कर सकते हो. बट UC350 इट इज अगेन विथ 500 SIP एक्सटेंशन, 100 कॉन्करेंट कॉल, और जो आ रहा है वो 32 पोर्ट FXS, FXO के साथ आएगा. ठीक है, इसमें आप सिम भी लगा सकते हो, रेंडेंट पावर सप्लाई है. बट ये जो भी 3 प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर ओनली ऑन द रोड मैप. इट हैज नॉट बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड, सो व्हेन इट विल बी लॉन्च्ड वी विल इन्फॉर्म यू. ओके, तो अभी जो हमने डिस्कस किया
वो हमारा टोटली, तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में, जो जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं, जो हम अपने पार्टनर्स को देते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स थे आपके सामने। उसके कुछ इनहैंस्ड वर्जन है, कुछ आपके वेल नोन वर्जन्स थे। अब इन सब के साथ साथ जो लास्ट प्रोडक्ट है हमारा, इसको हम क्विकली कवर करेंगे, क्योंकि आई थिंक काफी ज्यादा टाइम आपका इसमें, हमने आपका काफी टाइम ले लिया है। सो वी विल जस्ट फिनिश इट क्विकली अबाउट द एसबीसी। अगर हम एसबीसी की बात करें तो एक सिंपल सी बात है, आप अगर पहली लाइन देखो, इट इज अ सिप फायरवॉल, राइट। जब हम नेटवर्क फायरवॉल की बात करते हैं, फायरवॉल इज अ फायरवॉल, वी ऑल आर फेमिलियर विद फायरवॉल, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स नेटवर्क फायरवॉल होते हैं, कुछ सिप फायरवॉल होते हैं। लाइक आप अपने नेटवर्क में किसी अटैक को रोकने के लिए यू कैन यूज योर नेटवर्क फायरवॉल, बट इट विल block all type of incoming and outgoing traffic through that particular network। इसमें क्या होगा कि आपका जो कुछ एक पोर्ट्स जो वॉइस के लिए है, जो कम्युनिकेशन के लिए जिनकी डिपेंडेंसी है, वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता अगर आप नेटवर्क फायरवॉल लगाते हो तो। बट आप जब एसबीसी यूज कर सकते हो, एसबीसी यूज करने के टाइम पे आपको क्या मिलता है, इट्स अ सिप फायरवॉल। इट विल ओनली मैनेज योर ट्रैफिक विच इज कमिंग फ्रॉम द सिप ओरिजिनेटर और सिप रिसीवर। तो इट मीन जब भी सिप का, जब भी वीओआईपी का कोई ट्रैफिक होता है, देन वी नीड एसबीसी, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे दो ब्रांचेज हैं, दो ब्रांच आपस में कम्युनिकेट करना है हमें, और ओवर द इंटरनेट वी वांट टू कम्युनिकेट बिटवीन दीज ब्रांचेज। अगर हम नॉर्मल इंटरनेट पे जाते हैं, वी हैव अ पॉसिबिलिटी दैट कोई भी इसे हैक कर सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये होता है कि हम कुछ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म लाइक फायरवॉल वगैरह लगा के उसे ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन उस ब्लॉक करने में भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि एक एंड से जब दूसरे एंड पे ट्रैफिक फ्लो हो रहा होता है तो हम इंटरनेट तो फ्लो कर देते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हमेशा कुछ पर्टिकुलर पोर्ट्स ओपन होते हैं, और जब उन पोर्ट्स को हम अपने इंटरनेट पे ओपन कर देते हैं तो क्या होता है कि हैकर्स जो इसी पोर्ट को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहे हैं, वो उसके थ्रू एंटर कर जाते हैं। तो आपका नेटवर्क एक तरह से इनसिक्योर ही हो गया, वो सिक्योर वे में नहीं रह गया जब आपने उसके लिए ओपन किया। तो सेम टाइम पे अगर हम बात करें कि हम कैसे उसे सिक्योर कर सकते हैं, देन वी विल कम विद द एसबीसी। एसबीसी हमें क्या करता है कि एसबीसी उसी पर्टिकुलर पोर्ट्स को ट्रैक करता रहता है, एंड विद सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंट एल्गोरिथम ये क्या करता है कि जब भी हमारे पास कोई इनकमिंग ट्रैफिक आता है या कोई आउटगोइंग ट्रैफिक हमारी तरफ से जाता है, तो वो उसका हमेशा सेंडर एंड रिसीवर चेक करता है, दैट शुड बी अ वैलिड, दैट शुड बी इन अ वैलिड फॉर्म, राइट। जैसे एक नॉर्मल सी बात हम करते हैं, अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, ठीक है, कोई मेल ही आता है, तो आप मेल क्या होता है, हम मेल जब भी कोई आता है तो हम क्या चेक करते हैं, किस डोमेन से आया है। कई बार ऐसा होता है कि ICICI@gmail.com से मेल आ गया, तो जब वो मेल आता है तो हमें पता होता है कि gmail.com इट्स फ्रॉड मेल, लेकिन जब वही ICICI.com से आएगा तो हमें ये पता है कि इट्स अ वैलिड मेल, तो हम उसे ओपन करके देखते हैं, उसमें जो स्टेप्स लिखा है उसे फॉलो करते हैं। बट जब वो ICICI@gmail.com, वी नो दैट इट्स अ फ्रॉड वन, तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसे स्पैम कर देते हैं। द सेम थिंग एसबीसी इज गोइंग टू डू इन योर नेटवर्क। वो हमेशा ऑथेंटिकेट करता है आपके इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक के सेंडर एंड रिसीवर को, व्हेन इट सीम्स दैट द ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम authentic source in an authentic form, then it will allow it to pass through the network, your VoIP network। जैसे आप नेटवर्क फायरवॉल को यूज करके अपने वॉइस को सिक्योर नहीं कर सकते, सेम एज आप वॉइस फायरवॉल को यूज करके अपने नेटवर्क को नहीं सिक्योर कर सकते। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि आप एसबीसी यूज करोगे तो आपके नेटवर्क को भी एक फायरवॉल मिल जाएगा। नहीं, एसबीसी टोटली वॉइप फायरवॉल है और नेटवर्क फायरवॉल टोटली नेटवर्क फायरवॉल।
right? In security, it's SIP firewall, SIP SRTP, anti-attack, traffic control, ACL, topology hiding, SIP intrusion prevention, registration, call rate limiting, SIP malformed packet protection, endpoint authentication. इन शॉर्ट जो मैंने अभी आपको समझाया है, एक लेमैन लैंग्वेज में एसबीसी यही है. ट्रांसकोडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये सारे ऑडियो कोडेक्स अवेलेबल है विच यू कैन ट्रांसकोड एज पर योर रिक्वायरमेंट. इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरकनेक्ट डिफरेंट सिप नेटवर्क्स, मतलब एक लोकेशन दूसरे लोकेशन को आपको कनेक्ट करना है, यू कैन गो विथ एसबीसी. मल्टीपल सिप ट्रंक, आज की डेट में सिप ट्रंक्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, और जो अब पीआरआई से धीरे धीरे सिप ट्रंक की तरफ मूव कर रही है हमारी कॉलिंग टेक्नोलॉजी. So we can use SBC to secure that because SIP trunk is also some sort of internet telephony. ये इंटरनेट के थ्रू ही आ रहा है, तो अगर आपका नेटवर्क किसी भी तरह से इनसिक्योर है तो आपका SIP trunk जो है वो मिसयूज हो सकता है. One can easily misuse your SIP trunk if you are open for all type of threats on VoIP network. SIP header normalization, SIP message manipulation, NAT traversal, 1+1 active standby hardware redundancy. तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है वैसे आप उस टाइप की हम डिवाइस आपको प्रोवाइड करते हैं. लाइक ये सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 5 सेशंस एंड इट गोज अप टू 2000 SIP सेशन, राइट. ट्रांसकोडिंग, जब भी हम ट्रांसकोडिंग की बात करते हैं तो ट्रांसकोडिंग में हमारी कैपेबिलिटी थोड़ी सी लो हो जाती है. लाइक अगर आपके पास सेम, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में मैं बात कर रहा हूं सामने वाले को भी उसी फ्रीक्वेंसी में ही सुनना है, देन वी कैन गो विथ 2000 SIP सेशन. बट जैसे मैंने अगर इंग्लिश में बात की, सामने वाले को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, उसे हिंदी समझ में आ रही, तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे देन वी विल गो अप टू मैक्सिमम 1200 ट्रांसकोडिंग कॉल्स, राइट. SIP रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 10,000, ठीक है. 200 registrations per second, unlimited SIP trunk. तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम नॉर्मल फायरवॉल लगाते हैं तो क्या होता है, एक लोकेशन इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जब जाता है, और ये जब यहाँ पे हमने फायरवॉल जो लगा रखा है तो क्या कह रहा है, solve one-way audio, no audio issue while multi-level NATs existing in the topology. It means जब वन वे वॉइस हो जाता है, नो वॉइस आता है, क्योंकि हमारा फायरवॉल उसे ब्लॉक कर रहा है, राइट. एसबीसी आइसोलेट एंटरप्राइज एंड करियर नेटवर्क. एंटरप्राइज एंड करियर नेटवर्क, लाइक जब SIP trunk आता है तो दैट इज कमिंग फ्रॉम करियर नेटवर्क, और हमारा नेटवर्क जो है एंटरप्राइज नेटवर्क है. तो उसके जब हम अपने SIP trunk को एसबीसी पे टर्मिनेट करते हैं तो इट विल एक्चुअली प्रोटेक्ट आवर VoIP नेटवर्क. सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जैसे आप यहाँ देख लो, SIP trunk कैरियर SIP trunk आया और वो आपके एंटरप्राइज 1 एंटरप्राइज 2 ऐसे डिफरेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंटरप्राइज में भी सेम. तो अगर हम मतलब इन शॉर्ट अगर एसबीसी की हम बात करें तो एसबीसी इज अ VoIP फायरवॉल, ठीक है, और ये आपके VoIP नेटवर्क को टोटली सिक्योर करता है. और आज की डेट में हमें पता है जिस सिचुएशन में हम अभी है, तो आने वाला टाइम जो है दैट विल टोटली डिपेंड ऑन द रिमोट वर्किंग, रिमोट लोकेशन. हम जब भी बात करेंगे वी हैव टू ओपन आवरसेल्फ to work on a different location. Like our office is situated in Noida, but some of our employees are willing to work from their hometown or any of the location. So we have to open our network in that way. कि अगर आपको अपनी कॉलिंग देनी है, आपने अपने SIP trunk को नोएडा ऑफिस में टर्मिनेट किया, एंड आपका बंदा जो अभी इस सिचुएशन में ही है, आपका बंदा दिल्ली में बैठा है, he cannot travel to Noida. So
अगर आप अपना कॉलिंग नेटवर्क इंटरनेट पे ओपन करते हो, यू आर ओपन फॉर ऑल टाइप ऑफ थ्रेड्स. बट अगर वही आप SBC लगा के रखते हो, तो you are secure enough for all sort of VoIP communication. So that's all about Dinstar products, right?